This ecology is basically having some levels of organizations. There are 6 levels of organizations in ecology. I will draw like concentric circles. Better to draw like this. Individual. Okay. Yes. So individuals. Then we have individual and species. Okay. Yes. Then we have, just a moment. Yes. Population. The second part is, or second level is population. The third one is community. Fourth one is ecosystem. Fifth one is biome. And sixth one is biosphere. We have to remember this. Although UPSC does not ask questions specifically to this in prelims and mains, but again concepts. ठीक है, पहला और दूसरा लेक्चर जब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करिए. Right? So we are going to understand about each levels of we can say ecology, and thereafter in detail we are going to learn about these three. ठीक है, स्पेशली इकोसिस्टम एंड बायोम्स के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे और ज्यादा. ओके, सो फर्स्ट वन अमंग देम इज इंडिविजुअल्स. Now individuals means basically any living organism capable to live and act on its own. Simple है. We are individual. We are individuals. एक कोई एक living organism that is able to live or act, function independently. Right? That will be the individual. That individual can be of any species. That individual can be of any species. When we will talk about species, that comes a different aspect here, the taxonomic aspect and all these things. I will talk about that. But the meaning of individuals is any living organism that is capable of functioning, acting, living in an independent manner. That individual is made up of what? Cells, tissues, organs. हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में. What we learn in biology, individual or organism is made up of cells, then tissues and the different organs, organelles जिसको हम बोलते हैं, और cells के अंदर के जो है, right? And even the particular cell or a small bacteria, single celled animals, they are able to function independently. वो उनका फूड वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें है कि नहीं. They are individuals, including microorganisms. So that is simple individual. And what is species? Species is basically the individuals who are able to
interbreed, they are called as species. Together they are called as species. Okay, so for example, human beings. Human is a species. Okay, or if you take any other like tiger is a species, right? Because they are able to interbreed among themselves, and there will be next population being reproduced. So reproduction and population is the next aspect of the species. Understood? पहले इंडिविजुअल एंड स्पेसीज आएगा, ठीक है. अब मुझे बताइए, जब इंटरब्रीडिंग हो रहा है इंडिविजुअल्स के बीच में, there will be exchange of genetic setup, genes, okay, and there will be the new individuals, and there may be some errors in the replication. Biology में पढ़ते हैं ना हम ये, right? And errors in replication is nothing but mutation. Errors in replication means mutation, and because of this aspect only, the morphological and other characteristics of all these individuals within the same species are different. इसलिए हम सब अलग दिखते हैं. हम अलग क्यों नहीं दिख, मतलब ह्यूमन है तो एक ही, अगर तो सब एक जैसे दिखने चाहिए थे. Why we look different? We are different because our genetic setup a little bit fine difference. Major things are same. Fine differences are there because of mutation, because of interbreeding that is happening. But interbreeding happens within the same species. Interbreeding happens between the same species. उसी को species बोला गया है, और हर एक species के अंदर ये जो है individuals होंगे. Species के अंदर ये individuals होंगे. Understood? अब ये जो species जो है ना, ये साइंटिफिक टर्म यूज की जाती है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के. इट इज, वी कैन से दैट, वेरी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन. तो जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो स्पेसीज की बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज पॉपुलेशन. ओके, पॉपुलेशन की बात करते हैं. नाउ मैं जनरली ये फिर से एनालॉगस एक टर्म देता हूं उसको एग्जांपल्स के लिए. सो व्हेन दिस वी टॉक अबाउट दिस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वी कैन टेक इट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट आल्सो. कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट देते हैं, देखिए, इंडिविजुअल्स, मैं एग्जांपल देता हूं कि ये एक फैमिली है, कोई एक विलेज में रहती है, और वो एक, ठीक है, फैमिली में एक इंडिविजुअल है, समझो, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, ठीक है. तो फैमिली में एक इंडिविजुअल है, तो वो हो गया वन पर्सन. फिर हो गया पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मतलब है कि सिर्फ समझो एक फैमिली है, तो फैमिली में समझो 5 लोग है, 10 लोग है, 15 लोग है, 2 लोग है, 3 लोग है, बट वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो सेम रखते हैं ना. कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ सोशल एस्पेक्ट, फैमिली वैल्यूज होते हैं, कस्टम्स होता है, ट्रेडिशंस होता है. आई एम गिविंग एनालॉगस एग्जांपल. इंडिविजुअल, फैमिली, उसके बाद आता है कम्युनिटी. कम्युनिटी होता है समझो एक विलेज. अब वो विलेज में अलग अलग कास्ट, रिलीजन के लोग होते हैं, समझ में आ रहा है, और वो साथ में रहते हैं कम्युनिटी में. तो यहां पे भी जब हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो अलग अलग स्पीसीज जो है उनके इंडिविजुअल्स साथ में एक एरिया में रह रहे हैं. अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स साथ में एक एरिया में रह रहे हैं, वो हो गया कम्युनिटी. बट एक डोमिनेंट उसमें एक स्पीसीज होता है, उसके नाम पे वो कम्युनिटी का नाम जाता है. जैसे कोई एक विलेज है तो वहां पे एक डोमिनेंट कम्युनिटी होता है, जनरली एक डोमिनेंट कास्ट के लोग ज्यादा होता है वहां पे, और बाकी माइनॉरिटी में होता है. आई एम जस्ट गिविंग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि कैसे आप रिलेट कर पा रहे हैं उसको, ठीक है. उसके बाद आता है इकोसिस्टम.
इकोसिस्टम जो है वो हम बोल सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इकोसिस्टम जो है आप बोल सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट है, और वो डिस्ट्रिक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। वहां पे सारे इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और उसके एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या बोला था, इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। आर डिस्ट्रिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। होता है कि नहीं? हर एक चीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिसाइड होती है, पॉलिसी मेकिंग में होता है ना, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स में। उसके बाद होता है बायोम, इसको हम स्टेट या रीजन के एस्पेक्ट से देख सकते हैं। और लास्टली होता है बायोस्फीयर, वो है इंडिया, एक कंट्री। अब इसी हिसाब से हम ये सारा पढ़ेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड या इकोलॉजी से रिलेटेड। Now the second aspect I was talking here is population. It is nothing but we can say that the number of individuals of same species living in an area at a particular time period. If we are talking about tiger population in a particular tiger reserve, that is population. If you are talking about the population of बारासिंगा, तो उसका जो नंबर होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व में या नेशनल पार्क में, वो हो गया पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर ट्री स्पेसीज है समझो, वो नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसीज, दैट इज पॉपुलेशन। आर यू गेटिंग दिस? एक ही पर्टिकुलर स्पेसीज के कितने इंडिविजुअल्स है टुगेदर, दैट फॉर्म्स द पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन को भी हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के हिसाब से काउंट करते पॉपुलेशन। नाउ यू टेल मी हाउ पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज? आइदर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बर्थ रेट या फिर नहीं, उससे पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? डिक्रीज इन डेथ रेट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अरे चीता को लेके क्यों आए इधर? इमिग्रेशन मतलब सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल्स को लाके इधर लाया दूसरे एरिया से, तो नंबर बढ़ गया ना उसका, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पॉपुलेशन का, ह्यूमन का देखते हैं, तो कोई भी सिटी में पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होता है? दो रीजन से, यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है या फिर इमिग्रेशन हो रहा है, बाहर से लोग आके वहां बस रहे हैं। बट स्पेसीज सेम है अगेन, ठीक है, सेम ही स्पेसीज के इंडिविजुअल्स है, तो ऐसे ही फिर पॉपुलेशन कम क्यों होता है? या फिर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन कैसे याद रखने का? आई को इन, ई को एग्जिट, है ना, आई को इन और ई को एग्जिट, ऐसे याद रख सकते हैं। अब वो पॉपुलेशन, जैसे यहां से बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, ठीक है, कनाडा जाते हैं स्पेशली, ठीक है, तो वो क्या हुआ है? एग्जिट हो गया ना। या फिर हम केरला का पॉपुलेशन देखते हैं, तो वहां से बहुत सारे लोग जो है अरब कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां का पॉपुलेशन समझो कम हो रहा है। आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एट द स्पेसीज लेवल। द इंडिविजुअल्स, इफ यू टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल टाइगर पॉपुलेशन, आइदर नंबर ऑफ डेथ्स आर देयर और द टाइगर हैज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एलिफेंट पॉपुलेशन, number of deaths are increasing or the elephants have migrated to other place, ठीक है, तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेथ्स क्यों होती है कोई भी स्पेसीज की? सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वल्नरेबल स्पेसीज, ओके, लाइक वी हैव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आई विल बी टेकिंग मेनी सम नेम्स, ठीक है, वो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
आप वो बुक पढ़ेंगे तो वो आता रहेगा बीच बीच में. So great Indian bustard especially is there, it is having habitat in the Rajasthan, जो वहाँ का डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ पे उसका पॉपुलेशन. वहाँ पे डेथ्स it can be either because of habitat fragmentation, it can be because of poaching, it can be because of hunting, it can be because of let's say electricity lines जो होता है उसको वो टकरा के वो मर जाते हैं. ये रीजंस है अलग अलग, बट डेथ हो रहा है. या फिर इमिग्रेशन, उनका ही सेम हैबिटेट जो है पाकिस्तान में भी है, तो वो उड़ के उधर चला जाएगा. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो शायद वो माइग्रेट कर देगा उधर, तो उसका पॉपुलेशन कम हो गया, या उधर का इधर आ जाएगा तो बढ़ेगा. रिसेंटली न्यूज में था जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ज्यादा अभी एग ले कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनका पॉपुलेशन बढ़ने वाला है. ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज है, उनका पॉपुलेशन कुछ 200-300 नंबर्स है अभी. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स. ओके, नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय एरिया. ये डेंसिटी हो गया. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर एरिया, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मतलब हम देखते हैं ना कि टाइगर का डेंसिटी पर्टिकुलर टाइगर क्या बोलते हैं हम, टाइगर रिजर्व में ज्यादा है, एरिया कम है बट नंबर ऑफ टाइगर्स ज्यादा है. फॉर एग्जांपल जिम कॉर्बेट. जिम कॉर्बेट एरिया वाइज बहुत छोटा है, नंबर ऑफ टाइगर्स काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है. ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं समझने के लिए, बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड द पॉपुलेशन एस्पेक्ट. हियर ऑनवर्ड्स द थर्ड एस्पेक्ट इज और लेवल इज कम्युनिटी. Community. Okay, so in community, now you will understand the individuals of different species living together in पर्टिकुलर एरिया. क्या हो गया? ये कम्युनिटी हो गया. स्टिल वी हैव नॉट टच द इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट एस्पेक्ट. हैव वी? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, वी आर डीलिंग विथ ऑल दिस एट द स्पेसीज लेवल और इंडिविजुअल लेवल्स और द पॉपुलेशन एस्पेक्ट. हमने अभी तक अबायोटिक फैक्टर को डील ही नहीं किया है, हम सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स को डील कर रहे हैं पहले 3 लेवल पे. हमने अभी तक अबायोटिक फैक्टर्स को डील ही नहीं किया है. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज कम्युनिटी. हाउएवर दिस कम्युनिटी इज नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज. ऑफ दैट कम्युनिटी. अब ये साइंटिफिक रीजन के लिए करते हैं. ठीक है, zoologist or botanist, they are naming the particular community after dominant plant species. For example, grassland community. नाम कैसे देते हैं? For example, grassland community. अब यहां पे grass is the dominant place. Particular grass is a dominant species. But वहां पे animals भी है, वहां पे scattered trees भी हो गए कोई पर्टिकुलर. तो ऐसा नहीं कि बाकी कम इंडिविजुअल्स या स्पीसीज नहीं है, बट डोमिनेंट एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उसके नाम पे, और वो प्लांट ही, एनिमल नहीं. ओके, सो दैट विल बी, वी कैन से, अ कम्युनिटी. अब इसके आगे जो है इनके बीच में इंटरेक्शन और एनवायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन, ये पिक्चर में आएगा.
और वो है अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट, इकोसिस्टम। देखिए कम्युनिटी में क्या होता है ना कि मेजर माइनर क्लासिफिकेशन भी होता है। मेजर कम्युनिटीज आर largely they are independent of each other, and minor communities are called societies। ठीक है, अब हम भी देखते हैं ना कि इंडियन कम्युनिटी ऐसा अगर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कास्ट आता है ना, या फिर बहुत सारे रीजन आता है, छोटा सोसाइटी, उसको सोसाइटी नाम दे दिया। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू देयर आर मेजर एंड माइनर कम्युनिटीज। Major communities are relatively larger in area, larger in population, and they are relatively independent of other community. Minor communities are largely dependent on the neighboring community। ठीक है, उनको societies बोला जाता है generally। Fine? Now, ecosystem. We have defined the ecosystem as a structural and functional unit of biosphere. Now here we have to understand that there is some kind of interaction of living organisms with each other and with their environment, Here comes the interaction with the abiotic factors. I will separately deal with the biotic and abiotic components when we learn about ecosystem in the next part, but briefly let me give you idea. Ecosystem has two types of components, biotic and abiotic components. Biotic are living organisms. There can be plant, animals and microorganisms. They can be plant, animals and microorganisms like let's say bacteria, virus, fungi. But abiotic factors are any kind of factors. Let's say it is temperature, it is kind of we can say the soil, it is sunlight, it is climatic aspects, rainfall, water और even humidity, ये सारा हो गया abiotic factor। Nutrients especially, ठीक है, abiotic factors। These biotic and abiotic factors in an ecosystem components are linked to each other by two aspects. One, energy flow, and second is nutrient cycles, जिनको क्या बोलते हैं, biogeochemical cycles. We learn this in 11th और 12th standard biology. जिनका बायोलॉजी होगा उन्होंने जरूर पढ़ा है, नहीं बोल सकते हो ना, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है इसका मतलब नहीं, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, तो उनको बोला गया है न्यूट्रिएंट साइकिल्स और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। Now, whatever the interaction these living beings are having among themselves and with the environment, it is through this too. Energy flow, we are going to learn about this energy flow happening through food chain. कैसे हो रहा है वो? food chain के through हो रहा है। Different trophic levels are there. Okay, like for example, there are autotrophs, plants. उनको कौन खाता है? Herbivores, primary consumers. उनको कौन खाता है? कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन देयर आर ओमनिवोर्स आल्सो। इफ यू ऐड वन मोर ट्रॉपिक लेयर, टर्शियरी कंज्यूमर्स आर आल्सो देयर, ठीक है। तो ये एनर्जी फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में इस तरीके से, हाउ? थ्रू
food chain. How it is happening? Through food chain. So there is interaction, no? One is eating other living animals or plant. Interaction. They are deriving their food from that. ठीक है? Different types of interactions are there. Biotic interactions. We are going to learn about them. Mutualism or symbiotic relation, just we talked about. Amensalism, commensalism. इनका क्या क्या examples है वो अलग से हम पढ़ने वाले हैं. Biotic interaction. कैसे interact हो रहे हैं. Then we are going to learn about food web. ठीक है. Then we are going to learn about ecological pyramids. ठीक है. So ये अगले चैप्टर्स में आएगा बाद में. ये जस्ट इंट्रोडक्शन है. सेकंड, न्यूट्रिएंट साइकिल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं. देन देयर इज कार्बन साइकिल. देन देयर इज फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल. लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज क्वेश्चन ऑन फॉस्फोरस साइकिल ना. द मेन सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉस्फोरस साइकिल, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था प्रीलिम्स में. डू यू रिमेंबर? नहीं है, अभी तक देखा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है. तो फॉस्फोरस का मेन सोर्स होता है जो रॉक्स होता है. ठीक है. रॉक्स के थ्रू ही फॉस्फोरस जो है वो साइकिल में ऐड होता है. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. कैसे वाटर जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सर्कुलेट होता है, वो सारा देखना है हमें यहां पर. इससे क्या हो रहा है? अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स में इंटरैक्शन हो रहा है. और वो किससे हो रहा है? न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग से. Okay, understood. So this is ecosystem, and what things we are going to learn about in ecosystem? All these things. We are going to learn about functions of ecosystem. There are 4 functions of ecosystem. Okay, first is energy flow. Second is this one, biogeochemical cycles. Third is ecology or ecosystem development or ecological succession. And the fourth one is homeostasis. Separate session we are dedicating for this functions of ecosystem. Then we'll learn about types of ecosystem also. Terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem. और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो भी देखना है. ठीक है. पहला लेक्चर ऐसे ही होता है या आगे हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है. ठीक है. इसके आइडिया तो होनी चाहिए ना. ये वॉर पे जा रहे हैं तो पहले तो पता होना किसके साथ लड़ रहे हैं. ठीक, कैसे लड़ना है. ठीक है. ओके, सो दिस इज इकोसिस्टम. नाउ द फिफ्थ लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल, नॉट ट्रॉपिक लेवल, सॉरी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बायोम. ओके, बायोम इज बेसिकली द लार्ज एरिया विथ distinct climate, soil type, plant and animal species. Biome is always terrestrial. Okay, it is always terrestrial. Basically, the world is divided into the different biomes on the basis of climate and its elements. Climate is the controlling, determining factor of this biome. For example, tropical rainforests, or simply savanna biome, desert, or simply other examples are also there, tundra. Many examples are there. We are going to learn about it separately, types of biomes in tomorrow's session. Okay, so if we take the example of tropical rainforest, जैसे अमेज़न का फॉरेस्ट है ब्राजील में. फॉरेस्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है. ओके, एंड इट इज हैविंग अ यूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट
and because of that it is having unique type of soil, unique type of plant and animal species, making that area their own habitat. Understood? तो इसको बोला गया है बायोम. एक्वेटिक एरियाज को, जो रिवर्स, लेक्स या मरीन एरियाज है, उनको बायोम नहीं बोला जाएगा. They are aquatic ecosystems, and generally what we have here is aquatic ecosystems as freshwater, marine, and we can say that the brackish water. उसका 3 का ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इकोसिस्टम में. बट जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोम्स. यहां पे मैं लिख देता हूं क्लासिफिकेशन में. टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. इसका हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन. जस्ट फॉर योर आइडिया, aquatic, these terrestrials are basically biomes. Terrestrial ecosystems are basically called as biomes. Fine. Okay, so now you have understood the biomes, and last one is biosphere. Basically, it is area on Earth's surface which can sustain life. That is biosphere. Where the life exists, the life can flourish. That is biosphere. And we can draw the biosphere as an intersection of 3 spheres. So it means entire Earth. Huh? Entire Earth. Not entire Earth. I am telling about that. Because certain areas on the Earth, they are having some hostile environment that is not suitable for life. Okay, lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. The intersection and integration of all 3 is, we can say, biosphere. ऐसे ही ड्रॉ करना है उसको. Integration of all these 3 spheres. Lithosphere, litho means rocks या फिर soil. ठीक है. Arctic and Antarctic we missed this. हाँ, we will say that the some areas, ठीक है, जो जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम एनवायरमेंट होता है, वहां पे लाइफ सस्टेन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, या फिर जो हम बोलेंगे कि माउंटेन्स, हाईएस्ट माउंटेन्स पीक्स, या फिर डीपेस्ट ट्रेंचेस इन द ओशंस, दे आर इनहॉस्पिटेबल. ठीक है, तो यहाँ पे हॉस्टाइल एनवायरमेंट होता है, वहां पे लाइफ फ्लरिश नहीं हो सकता. ठीक है, देयर कैन बी सम बैक्टीरिया, सम लेट्स से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट दे आर इन डॉर्मेंट स्टेज. अगर होते भी है तो वहां पे. ठीक है, सो बायोस्फीयर इज बेसिकली द ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज बायोस्फीयर. ठीक है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं बोल सकते हैं कि उसको बायोस्फीयर है. रादर इट इज इंटीग्रेटेड. द बायोस्फीयर और द लाइफ कैन सस्टेन बिकॉज ऑफ दीज 3, है ना. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी टेक, एंड lithosphere is very important because it is kind of habitat, no, for many species. For us, basically the plants are growing on the soil, so we are having this as a food. तो ये सब चीजें हैं वहां पे. ठीक है, so this is biosphere. Now you have understood levels of ecology, everyone.
levels of organizations, I'm sorry. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.